Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you in my channel. This is Danish Muzaffar and today we are going to talk about an important topic which is resources and their classification. As far as this topic is concerned, I have compiled this topic from NCRT books and this is very important topic because every time in every competitive examination you will see questions from this very topic. So this is a very important topic and we're studying this topic at various levels from 8th standard up to graduation level. So this is very important topic and this is important for each and every student. So let's begin. If somebody will come to you and he asks you a question regarding resources, that what is a resource, most of the students will answer like this: resource is anything which satisfies human desire. Is it a proper way to answer? No, because you are not doing your best. You have just memorized the definition of resource, which is not an enough answer, which is not a sufficient answer. So what we have to do? We have to study a topic at its best. And studying a topic at its best is studying a topic in conceptual perspective. Remember this thing, it will help you always. So always study a topic in a way so that you can teach others. So this thing is very important. Then you have to study a topic very hard. So today let's try to study in a way so that your concept will get clear. And I promise you, if you watch this video up to end, you don't have to memorize it, and you don't have to आपको रटने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि you'll be able to write a lot of pages about this topic. So let's start. What is a resource? यहाँ पे कुछ definitions मैंने कोट की हैं. पहले इनकी ओर चलते हैं कि हम resource किसको कहते हैं. Things that are present in our society, in our surrounding environment, which are known to satisfy human wants, are termed as resources. कोई भी ऐसा चीज जो हमारे माहौल में पाया जाए, जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारी सराउंडिंग में पाया जाए, जिससे इंसान की वांट, जिससे इंसान की ज़रूरत, जिससे इंसान की नीड पूरी हो जाए, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई डिजायर, वांट, नीड इज अ रिसोर्स. सिंपल सी बात है. कोई भी ऐसा चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करे, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. Here are some examples that we're using in our day-to-day life. Water. When we feel thirsty, we drink water, so it's a resource. Because हम ज़रूरत थी हमें पानी पीने की, तो इसने हमारी जो नीड है वो पूरी की, तो रिसोर्स है. इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम शाम को घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करेंगे, तो हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा होगा. एंड इवन वी कांट डू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक खाना खाना है, बाकी कोई स्टडी करता है देर रात तक, तो नहीं हो सकता. सो दिस ऑल is possible when you have the electricity. So electricity, we are using electricity, then it's a resource. We have to go somewhere. I have quoted here an example of rickshaw. We have to go somewhere because we have to go somewhere which is very far, जो यहाँ से बहुत दूर है. अगर हम पैदल जाएंगे तो एक दिन लग जाएगा, लेकिन अगर हम कोई व्हीकल यूज करेंगे तो उससे हमारा टाइम बच जाएगा और हम ज़्यादा कन्वीनियंट फील करेंगे. सो इट्स अ रिसोर्स. सो इसने हमारी जो नीड थी, हमारी जो ज़रूरत थी वो पूरी की, रिसोर्स है. वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, रिसोर्स है. कभी बोर फील कर रहे हैं, सोचा कुछ पढ़ें, टेक्स्ट बुक उठाई, हाथ में ली, पढ़ना स्टार्ट किया, तो इट्स अ रिसोर्स. लेकिन अगर हम देखेंगे फ्रॉम अ वेरी स्मॉल थिंग लाइक नीडल and up to a very big object that we have, that's airplane. मतलब समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ. एवरीथिंग इज रिसोर्स. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि हम रिसोर्स
को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपके आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो सराउंडिंग है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो मेरे पास ये चीज है क्या ये रिसोर्स है या सिंपली एक सबस्टेंस या थिंग है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी पॉइंट. सो व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और ए सबस्टेंस ए रिसोर्स? ये इंपॉर्टेंट है. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी चीज को क्या ये रिसोर्स है या नहीं है? The above examples have something in common. They all have been used by you. So, they have utility. सिंपल सी बात है. जो जो सारी चीजें ऊपर दी हुई है, इनमें एक चीज कॉमन है. वो ये कि आप इनको इस्तेमाल करते हो. सो दे हैव यूटिलिटी. इनमें यूटिलिटी है. यूजेबिलिटी, अगर हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे यूटिलिटीज सिंपली इट्स अ पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई डिजायर. फिर हम उसको मेजर करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, बट दैट्स सम डिफरेंट. वो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दिस यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अमंग अ सबस्टेंस, अ थिंग और अ रिसोर्स. ये आपको मदद डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी चीज रिसोर्स है. क्या जिस चीज के बारे में बोल रहा हूँ, जिस चीज के बारे में बोल रहा हूँ कि ये रिसोर्स है, क्या ये वाकई रिसोर्स है? तो आपको कैसे पता चल सकता है? दैट इज दिस यूटिलिटी. जब भी आपको लगे हम नीडल छोटा से छोटा, मतलब नीडल वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं कभी भी. अगर हमें कोई स्टिच करना हो, कपड़ा फट गया है, उसको फिर से सियना हो, तो वी आर यूजिंग दिस नीडल. सो उसकी यूटिलिटी है. अगर कम ही है यूटिलिटी, इट डजेंट मैटर कि किसी चीज की यूटिलिटी ज्यादा हो या कम हो, वो मैटर नहीं करती है. बट व्हाट मैटर्स इज इसमें यूटिलिटी है या नहीं है. अगर किसी चीज में यूटिलिटी है, अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो रिसोर्स है. ये चीज आपको याद रखनी चाहिए. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द टर्म through which you can differentiate among a substance, an object, or a resource. Resources use or utility gives it a value. सिंपल सी बात है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा. ऑल सोर्सेज हैव सेम वैल्यू, सम वैल्यू. सिंपल सी बात है. कोई भी रिसोर्स, मैंने आपको पहले ही बोला कि चाहे यूटिलिटी ज्यादा हो या कम हो, लेकिन जिस भी चीज में आपको यूजेबिलिटी, यूटिलिटी दिखे, आप उसको रिसोर्सेज की कैटेगरी में रख सकते हैं. लेकिन यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, रिसोर्सेज यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. सिंपल सी बात है. जो चीज हम ज्यादा यूज करेंगे, उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, उसका जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा. सपोज मैं आपको एग्जांपल लिख दूंगा. हमारे पास दो फोन्स हैं, वन इज स्मार्टफोन एंड अदर इज सिंपल सेल फोन. सिंपल सी बात है. हमारे पास दो फोन है, एक है स्मार्टफोन, एक है सेल फोन. जो सेल फोन है उससे हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम स्मार्टफोन की ओर जाएंगे, स्मार्टफोन, वो भी दोनों रिसोर्सेज हैं, बिकॉज उसमें भी यूटिलिटी है. उससे हम कॉल कर सकते हैं, हमारा टाइम बच सकता है. जो जितना अगर हमें कहीं पे जाना है, किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, तो वी कैन डू दैट वेरी थिंग इन नो टाइम. बट जो स्मार्टफोन है उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, बिकॉज हम उसको उससे हम बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वी ऑल आर यूजिंग स्मार्टफोन, सो हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो रिसोर्स की यूटिलिटी होती है, यूज होती है, वो उसको वैल्यू ज्यादा ऐड करती है. सपोज जिस जिस रिसोर्स की यूटिलिटी ज्यादा होगी, यूटिलिटी रेट या यूजेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका वैल्यू उतना ही होगा. लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. जो भी कोई रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स के जुमरे में आता है, उसकी एक अलग सी वैल्यू होती है. चाहे कम हो या ज्यादा, वो मैटर नहीं करती, लेकिन उसकी वैल्यू है. नाउ वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. सिंपल सी बात है. वैल्यू होता है वर्थ, कीमत. लेकिन सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. सिंपल सी बात है. किसी रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू होता है. इकोनॉमिक वैल्यू से मुराद मतलब कि हमारे पास मेटल्स है. यहाँ पे मैंने लिखा है मेटल्स. उसको हम जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं,
तो हम उसको बाजार में बेच सकते हैं, उससे इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो सकती है। लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, कोई कहीं पे कोई कोई स्पॉट है जो आप कभी बोर फील कर रहे हो, आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, जब आप वहां जाते हो तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वजह से। तो हम इसको भी रिसोर्स कह सकते हैं। इट्स नॉट इकोनॉमिक वैल्यू which makes a thing which increases the value of a resource। सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू ही ऑलवेज जरूरी नहीं है किसी चीज को करार देने के लिए कि ये रिसोर्स है, बल्कि इसने आपकी डिजायर पूरी की। ये जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप था, इसने आपकी आप बोरिंग फील कर रहे थे, आपको थोड़ा डिप्रेशन फील हो रहा था, तो आप रिलैक्स हो गए। तो दिस इज ऑल्सो ए रिसोर्स। इनमें भी यूटिलिटी है, बोथ आर रिसोर्सेज, बिकॉज इनमें यूटिलिटी है, इसमें यूटिलिटी है कि इससे इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, इसमें यूटिलिटी है इसने आपकी वांट, आपकी नीड को सेटिस्फाई किया। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ, नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे मैंने हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा एक चार्ट बनाया सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। रिसोर्सेज को हम मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। दीज आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स जो आपको याद रखने हैं। फिर ये सब डिवाइड होते हैं, ये जो 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्स, 3 जो रिसोर्स के टाइप्स हैं, ये सब डिवाइड होते हैं। सपोज नेचुरल में से निकल गया रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एंड यहाँ से निकलता है कंटिन्यूअस और फ्लो, और फिर रिन्यूएबल से एक और बायोलॉजिकल, और फिर बायोलॉजिकल सब डिवाइड होता है किसमें, नेचुरल वेजिटेशन में। ये अंडरस्टूड है, अब यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ एंड नॉन रिन्यूएबल में से क्या निकलता है, रिसाइकलेबल, मतलब जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये एक बार जो खत्म हो गए, फिर ये इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है रिप्लेनिश होने में, रिप्रोड्यूस होने में। लेकिन इनमें कुछ रिसाइकलेबल मेटल्स है, रिसाइकलेबल रिसोर्सेज है। मीन्स कि जो मेटल्स है, मेटल्स को हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। सपोज हमने कुछ खरीदा जो आयरन का बना हुआ है, और हमने उसको बहुत टाइम तक यूज किया, अब हम उसको वापस किसी मैन्युफैक्चरर को देते हैं, वो उससे कुछ डिफरेंट चीज बना सकता है। सो हम इसको रिसाइकल फिर से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे नॉन रिसाइकलेबल है। इट मीन्स फॉसिल फ्यूल्स, जो एक बार हमने यूज किए फिर हम उनको वापस नहीं ला सकते। हाँ, अगर लाएंगे भी, दैट विल टेक a lot of time, that will take decades, millions of years. So this thing is very important. So let's study them one by one. हाँ, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने आपको बोला कि इसके 3 ब्रॉड टाइप्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये आपको समझना है। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called a natural resource। जहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो मच मॉडिफिकेशन यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे एयर है, वाटर, सॉइल्स, सनलाइट, मिनरल्स एक्स्ट्रा, ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे इनमें एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि हमने इनको ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। मॉडिफाई इन द सेंस कि एयर जो है हर जगह पे अवेलेबल है, वाटर जो है ज्यादा से ज्यादा हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि वाटर कंटेमिनेटेड है, तो हम इसको बॉईल कर सकते हैं। सॉइल्स, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, फर्टाइल्स ऐड करते हैं। सनलाइट, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। मिनरल्स, दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, और हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमने ज्यादा इनको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई कि दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, मनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। सिंपल सी बात है। अभी मैं बोल रहा था वाटर, हम वाटर, अगर हमें लगा कहीं पे कि ये वाटर साफ है, पानी साफ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली पियेंगे, हम इसको बॉयल भी नहीं करेंगे। सो इट्स अ रिसोर्स, इट हैज अ यूटिलिटी। हम थर्स्ट फील कर रहे थे, हमने पिया, हमने पानी पिया, उससे क्या हुआ, उससे हमारी जो डिजायर है वो पूरी हो गई। और यहाँ पे हम इसको नेचुरल रिसोर्स के जुमरे में क्यों रखते हैं, वो इसलिए कि हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं।
हम इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये आपको नेचुरल रिसोर्स में याद रखनी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स हैं जिनको ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, जिनको हमने प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। Another point I have quoted here: in some case, tools and technology may be need to use natural resource in the best possible way. सिंपल सी बात है। कहीं पे आपको लग रहा है कि सपोज मैंने आयरन एक्सट्रैक्ट किया, अब उसको यूज करना है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टूल्स होने चाहिए सो दैट कि उसकी प्रोसेसिंग हो जाए, उसको हम आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करें, और बाद में उस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे हम उसको आयरन ओर से जहाँ पे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। तो तभी हम आयरन को एट इट्स बेस्ट यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Sometime, Sometimes natural substance become resource only when their original form has been changed. मैं अभी बात कर रहा था आयरन ओर की, बिकॉज जो हम आयरन यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो जिस फॉर्म में हम आयरन यूज कर रहे हैं, ये हमें इसी फॉर्म में जमीन से नहीं मिलता है, बिकॉज हमें आयरन ओर मिलता है। हम जब माइनिंग करते हैं तो वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन ओर, और फिर आयरन ओर की हम प्रोसेसिंग करते हैं। उसकी जो अलग से यूनिट्स बने हुए होते हैं जहां आयरन ओर की प्रोसेसिंग होती है, और फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? नेचर ने हमें आयरन ओर प्रोवाइड किया, लेकिन क्या हम आयरन ओर को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। सो इट्स ह्यूमन जिसने ये सब किया, जिसने पहले इसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद इससे एक्सट्रैक्ट किया आयरन, तभी ये हमारे लिए काबिल इस्तेमाल बना, तभी ये यूजेबल बन पाया। सो जितनी भी चीजें जिनको ये प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, जितनी भी नेचुरल जितनी भी चीजें जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, लेकिन उनको प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो वो सब, और फिर उनसे एक नया रिसोर्स बनाया जाता है। सपोज आयरन ओर हमें मिला था, उससे हमने एक्सट्रैक्ट किया आयरन, या हमें पेट्रोलियम मिलता है तो वहां से हम पेट्रोलियम, सिंपल जैसे रॉ फॉर्म ऑफ पेट्रोल, ये सेम इज हियर। यहाँ पे जो आयरन होता है, आयरन ओर इज रॉ फॉर्म ऑफ आयरन, ये आपको याद रखना चाहिए। सो नेचर हमें बस रॉ फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो अब ये ह्यूमन बीइंग है जिसने सब इसमें चेंज किया, इसमें प्रोसेसिंग की, और इसको काबिल इस्तेमाल बनाया। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, सही बात है, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, हम डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं बहुत सारे चीज कंस्ट्रक्ट करने में, लाइक वी हैव बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो हम इनको कैसे हम डायरेक्टली क्या रोड्स बनाते हैं? रोड्स के लिए हमने, या ब्रिज हम ऐसे ही बनाते हैं, उसके लिए आयरन आयरन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें नेचर प्रोवाइड करता है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स। यही जो हम यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर रिसोर्सेज बनाने के लिए। रोड्स हमारे लिए रिसोर्स है। कैसे रोड्स रिसोर्स है? अगर हमें कहीं जाना है, प्रॉपर रोड्स ना हो, अच्छी कनेक्टिविटी ना हो, क्या होगा? जो फैसला हम 10 मिनट में मतलब कर सकते हैं, आई मीन जितना हम ट्रैवल 10 मिनट में कर सकते हैं, उसको ट्रैवल करने में हमें मे बी 1 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं। सो यहाँ पे रोड साबित हुआ कि ये रिसोर्स है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। सो ये रिसोर्स आया कहाँ से? इसकी प्रोसेसिंग किसने की? दैट्स अ ह्यूमन। तो तभी इनको बोला जाता है कि दीज ऑल आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बाकी अब यहाँ पे खुद समझ सकते हो, मैंने अभी व्हीकल के बारे में भी बोला, मशीनरी जो हम आज यूज कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? जब हमारे पास डिफरेंट एक्सेसरीज है, लाइक वी हैव लैपटॉप, वी हैव इंटरनेट फैसिलिटीज, तो जब ये चीजें हमारे पास पॉसिबल है, तभी हम तभी हम अभी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मशीनरी, दिस इज दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
आज जो भी हो रहा है दुनिया में, दिस ऑल बिकॉज ऑफ दिस मशीनरी और वी कैन से टेक्नोलॉजी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये टेक्नोलॉजी बनाई किसने? ये बनाई इंसान ने. सो रिसोर्स है. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स. सिंपल सी बात है. नेचर ने इंसान को दिमाग दिया, उसको उसमें सोचने की सलाहियत दी, लेकिन इस दिमाग को यूटिलाइज किया किसने? इंसान ने. सो हम अब टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे? अब इसको हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे या मैन मेड रिसोर्स, सॉरी, ह्यूमन मेड रिसोर्स? हम इसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहेंगे, बिकॉज इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन इसको रिसोर्स बनाने में है वो एक इंसान का है. सो दैट्स वाई कि हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स में. नाउ लास्ट टाइप जो रिसोर्सेज का है, इसकी क्लासिफिकेशन मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे आपको अंडरस्टैंड होगा कि हम हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं. लेकिन दीज आर द ब्रॉड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज. People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill, technology. Human resource क्या होता है? Human resource simply होता है जो इंसान होते हैं, people, they are itself as a resource. Humans बजाते खुद resources है. क्यों? Because it's humans which is transforming natural resource to make various other resources. सिंपल सी बात है. जब तक इंसान के पास नॉलेज नहीं होगी, जब तक इंसान के पास स्किल नहीं होगा, जब तक इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो वो ये सब नहीं कर वो ये सब नहीं कर सकता. सो ये तीन चीजें इंसान के लिए बहुत जरूरी है. नॉलेज, उसके पास वाकफियत होनी चाहिए, उसके पास किसी चीज को करने का इल्म होना चाहिए, कैसे करना है. एंड स्किल, टेक्निक होनी चाहिए उसके पास. एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक नया रिसोर्स क्रिएट करने में. और ये नया रिसोर्स क्रिएट कौन करता है? ये ह्यूमंस करते हैं. तो दैट्स वाई कि ह्यूमंस, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. यहाँ पे पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्स. सिंपल सी बात है. इंसान जो है ये भी एक ये रिसोर्स है और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. बिकॉज जो हमारे पास जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा है. लेकिन ऐसे रिसोर्स जिनको ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो बहुत कम है. सो बाकी जितने सारे रिसोर्सेज है, इनको काबिल इस्तेमाल बनाता कौन है? दैट्स अ ह्यूमन. सो दैट्स वाई कि ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जापान एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. जापान के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल जापान इज इन द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्यों? आपने कभी इस पे सोचा है जापान क्यों डेवलप्ड कंट्रीज में से है? बिकॉज वहाँ ह्यूमन को प्रेफरेंस दी जाती है, वहाँ ह्यूमंस को कंसिडर किया जाता है एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन उनके वो लैग कर रहे हैं इन तीन चीज़ों में. उनके पास ना नॉलेज है, ना स्किल है, ना टेक्नोलॉजी है. रिजल्ट आपके सामने है. जो अफ्रीकन कंट्रीज है सबसे पुअर कंट्रीज मानी जाती है. सो ये चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी होता है. और ह्यूमंस, जो इंसान होता है, वो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है. यहाँ पे एक और पॉइंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? जब हम ह्यूमंस की क्वालिटीज को इम्प्रूव करें, जो उनके पास स्किल होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, एनहेंस करें. इस एनहेंस क्यों करें हम? इसको इम्प्रूव क्यों करें? इंसान के स्किल्स को हम इम्प्रूव क्यों करें? सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करे. तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. उम्मीद है कि आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है. नाउ वी आर स्टडिंग द क्लासिफिकेशन. वो जो हमने पढ़ा अभी, यहाँ पे मुझे थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा. हाँ, ये जो थे, दीज आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. जो फर्दर डिवाइड होता है, फिर उससे क्या निकलता है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पे क्लासिफिकेशन, वो थे टाइप्स. अगर आपको एग्जाम्स में ब्रॉड सिर्फ टाइप्स आएंगे तो आप इतना ही लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन आया तो यू हैव टू राइट दिस ऑल. सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, रिसोर्स आर क्लासिफाइड एज. ऑरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज
को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, वन इज बायोटिक एंड अनदर इज एबायोटिक। सिंपल सी बात है, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनमें लाइफ है, जो लिविंग रिसोर्सेज है। सपोज वी हैव प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। ये किस में आते हैं, इन विच कैटेगरी दे कम्स, दे आर, we can put all these plants, animals, human beings in biotic resources because they have life, because they are living. Now here, abiotic resources. What are abiotic resources? Abiotic so simple, biotic का opposite biotic होता है जिनमें लाइफ होती है। यहाँ पे abiotic जो है, abiotic resources are non living, इनमें जान नहीं होती है, और वी कैन से दे आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि एबायोटिक रिसोर्स क्या है। एबायोटिक रिसोर्स, इसमें सॉइल्स है, मिनरल्स है, मेटल्स है, रॉक्स है, और भी बहुत कुछ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये सब चीजें कोट की हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज ख्याल जहन में रखना है कि जो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज है, इन दोनों में यूटिलिटी है। आपको ये नहीं समझना जो बायोटिक है सिर्फ उन्हीं में यूटिलिटी है, नहीं। हम इनको तभी बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जब इन इन दोनों में यूटिलिटी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल आर रिसोर्सेज। हाँ, किसी की यूटिलिटी ज्यादा हो सकती है, यूजेबिलिटी किसी की कम, लेकिन जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ऑल आर द रिसोर्सेज। प्लांट्स पता ही है आपको, एनिमल्स अच्छे से वाकिफ है इससे, ह्यूमन बींग्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने बारे में ना जाने? सो दीज ऑल आर रिसोर्सेज। नाउ सॉइल्स, सॉइल्स भी रिसोर्स है। कैसे? बिकॉज इट्स सॉइल जिससे पॉसिबल है, जिससे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं जमीन पे। अगर सॉइल्स ना होंगे तो क्या हम कल्टीवेट कर सकते हैं? क्या हम जमीन से कुछ उगा सकते हैं? नहीं। सो दिस सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मिनरल्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बहुत सारी चीज आप देखिए। मेटल्स, रॉक्स, रॉक्स भी मिनरल सॉरी रिसोर्स है। तो अगर हम रॉक्स को पढ़ना चाहेंगे तो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, आपको उसकी ओर जाना जरूरी नहीं है, बट आपको बस ये याद रखना है कि ये सब चीजें रिसोर्स हैं। समझाने के लिए, जो रॉक एज ए रिसोर्स, अब आप कहेंगे रॉक कैसे रिसोर्स हो सकता है? बिकॉज जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम उसकी जो बेस होती है वो हम रॉक्स की बनाते हैं, सो दैट्स अ रिसोर्स। तो आपको बस, you just have to observe and you will find all these resources in the environment or in your surrounding. Now on the basis of exhaustibility, कौन कितना जल्दी खत्म होता है, उसके हिसाब से रिसोर्सेज के दो टाइप्स है। वन इज renewable resource, another is non-renewable resource. What are renewable resources? Resources which can be renewed, replenished, reproduced quickly. ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बहुत जल्दी रिन्यू कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं, जिनको हम अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स आर हियर, सोलर, विंड एनर्जी, या सोलर एनर्जी हम कहेंगे, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब क्या है? these are renewable resource, because ये रिप्रोड्यूस हो जाती हैं, इनको इजी, इन नो टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इनको रिप्लेनिश होने में। ठीक है, सो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। सिंपल सी बात है, इनमें कुछ अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जिनको जो इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो उससे अफेक्ट नहीं होते हैं। सपोज हम सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इंसान जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज अंजाम देता है ज़मीन पे, तो उन एक्टिविटीज से ये जो रिसोर्स हैं ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं, तभी हम इनको कहते हैं कि दीज आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। बट सम आर लिमिटेड, लिमिटेड इन द सेंस यहाँ पे मैंने लिखा है बट सम ऑफ दीज आर लिमिटेड, मीन्स अगर हम इनको केयरफुली विद प्रॉपर केयर यूज नहीं करेंगे तो इनका जो स्टॉक है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको अच्छे से इस्तेमाल ना करें
तो उनका जो स्टॉक है वो अफेक्ट हो जाएगा। सपोज वाटर है, हमें पता है कितना हमारे पास अवेलेबल फ्रेश वाटर है, सॉइल्स, फॉरेस्ट, तो अगर हम इनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे डेफिनेटली इनका जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो अगर हम कुछ डिकेड्स बाद पहले देखेंगे 20-30 ईयर्स अगो, तो जितना फॉरेस्ट कवर उस टाइम था आज उतना नहीं है। अब अगर हम फिर से इनको फिर से अगर हम एफॉरेस्ट्रेशन करेंगे बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दीज आर लिमिटेड रिसोर्सेज, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या हमें हमें क्या करना है, हमने उनको केयरफुली यूज करना है सो दैट कि उनका स्टॉक इफेक्ट ना हो जाए। नाउ the other is non-renewable resources. What are non-renewable resources? Those resources which cannot be renewed, reproduced quickly. हम ये नहीं कह सकते जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको वो फिर से नहीं बन सकते, बन सकते हैं बट दैट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, दैट विल टेक मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? अगर हम इंडिया की बात करें 60-65, इट्स अराउंड दिस। तो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। सो हमने क्या करना है इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ, वी हैव टू यूज देम प्रॉपरली, वी हैव टू यूज देम इन अ प्रॉपर वे सो दैट कि उनका स्टॉक भी अफेक्ट ना हो जाए। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको रिन्यू करने में, रिप्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिनको हम रिन्यू या रिप्रोड्यूस या रिप्लेनिश बहुत जल्दी नहीं कर सकते। सो वो सब किस जुमरे में आएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑल दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। सिंपल सी बात है, ये जो रिसोर्सेज है रिन्यूएबल, इनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, ये अनलिमिटेड नहीं होते। सिंपल सी बात है, जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से कई रिसोर्सेज का लिमिटेड स्टॉक होगा तो डेफिनेटली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका भी लिमिटेड स्टॉक होगा। एंड मैंने अभी आपको बोला रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड, replenished once the stock has exhausted, takes thousands of years to be renewed। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अभी मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में, या हम कहेंगे रिप्रोड्यूस होने में। Examples, here are some examples of renewable resource: minerals, metals, fossil fuels, these all are renewable, non-renewable resources। तो इनमें फॉसिल मिनरल्स आपको पता है, ये मेटल्स, हमारे पास बहुत सारे मेटल जो हम यूज करते हैं। एंड दिस फॉसिल फ्यूल्स, इनमें आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। लेकिन ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। वन इज रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ यहाँ पे रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। तो रिसाइकलेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दी थी मेटल्स की, हम उनको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, आई मीन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज जो इनमें फॉसिल फ्यूल्स होता है, जो एक बार इनका जो स्टॉक है, एक बार हमने इनको यूज किया तो हम इनको फिर से बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो ये किस में आएंगे? नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज में। हाँ, ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन सा? एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑन द बेस ऑफ यूज या लेवल ऑफ, या सिंपली डेवलपमेंट है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से रिसोर्स के दो टाइप्स हैं। वन इज नोन एज एक्चुअल रिसोर्स, अदर इज पोटेंशियल रिसोर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसके हमें फुल इंफॉर्मेशन हो कि इसका हमारे पास कितना स्टॉक है, दैट्स that is an actual resource। And one more point,
एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके साथ। सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिसका हमें स्टॉक पता हो कितना हो, जिसकी क्वांटिटी हमें पता हो कितना हो, नहीं, बल्कि जो हम यूज कर रहे होंगे प्रेजेंट में, तो जो एक्सेसिबल होगा, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स हैं कोल, वाटर, पेट्रोल। हमें पता है कोल ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, पेट्रोल, वाटर, हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है, टोटल वाटर जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 70% सबको पता है। पेट्रोल हमारे पास गल्फ कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है। सो ये सब हमको पता है, इनकी क्वांटिटी भी हमें पता है। तो दैट्स वाई कि इनको हम एट प्रेजेंट यूज भी करते हैं। दैट्स वाई हम इनको कहते हैं दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है एक्चुअल रिसोर्सेज की। वन इज द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रोर रीजन ऑफ जर्मनी, तो वहां पे भी पता है कितना है। ब्लैक और डार्क सॉइल ऑफ महाराष्ट्र एक्चुअल रिसोर्स है, बिकॉज हम इसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें वहां से कल्टिवेट करते हैं। पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, इट्स ऑल्सो है it's also an actual resource, sorry, an actual resource. Now potential resource, what are potential resources? Potential resources are those resources whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमें पता नहीं है कितनी है, जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमें पता नहीं है कितनी है, और हम उनको यूज भी नहीं कर रहे होते हैं। क्यों हम इनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, सो पोटेंशियल रिसोर्स के हवाले से आपको ये याद रखना होगा कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमें पता नहीं है कितनी है, एंड जिसको हम प्रेजेंट में यूज भी नहीं कर रहे होंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन बिकम रियल रिसोर्स, ये भी अभी मैं यही बोल रहा था। ये रियल रिसोर्स कब बन सकती है एक्चुअल रिसोर्सेज? जब हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। जब ये चीजें हमारे पास होगी, जब ह्यूमंस होंगे, तो डेफिनेटली उनके पास स्किल होगा, उनके पास नॉलेज होगी, तो तभी ये जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है ये एक्चुअल रिसोर्स या हम कहेंगे रियल रिसोर्स में तब्दील हो सकते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, जो यूरेनियम है लद्दाख में, पता है कि यूरेनियम लद्दाख में है, लेकिन हमने उसको अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो हम उसको एक्चुअल रिसोर्स नहीं कह सकते, बल्कि हम उसको किस जुमरे में रखेंगे, हम उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि हम अभी जो यूरेनियम लद्दाख में अवेलेबल है, वहां पे पाया जाता है, हम वो एक्सेसिबल नहीं है। क्यों एक्सेसिबल नहीं है? उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लाइक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, सो दैट हम उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम उनको पोटेंशियल रिसोर्सेज में रखेंगे। नाउ ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप की बेस पे हमारे पास we have four types of resources. One is individual, सिंपल सी बात है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सिंपली जब कोई इंडिविजुअल किसी रिसोर्स को ओन करे, उसको हम कहते हैं दैट इट्स एन इंडिविजुअल रिसोर्स। रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल रेफर एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जांपल्स आपके सामने है, ऑन प्लॉट ऑफ लैंड, हाउसेज, प्लांटेशन फील्ड्स, पास्चर लैंड्स, वाटर वेल्स। ये सब आ सकते हैं किस जुमरे में? आई मीन प्लॉट ऑफ लैंड किसी का है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं। किसी का मकान है, प्लांटेशन फील्ड है, कहीं पे कुछ कल्टिवेट कर रहा है, तो किस में आएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स में। पास्चर लैंड्स, वाटर वेल्स, सब इंडिविजुअल रिसोर्स है। नाउ अदर टाइप, दैट्स कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज? रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल और एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्सेज जिससे एक कम्युनिटी मुस्तफीद हो सकती है। सपोज अगर हम किसी गांव की बात करेंगे, जो शुगर केन मिल्स हैं, जो साउदर्न इंडिया में पाई जाती हैं, वहाँ ज्यादा वो कम्युनिटी ओनर मिल्स हैं। क्यों? बिकॉज हमें पता है सीजनल मिल्स हैं, जब शुगर केन वहां से कल्टिवेट होता है तो फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, तो 4-5 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे या कोई गांव इकट्ठा होके कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्ट करने के बाद वो एक सेटअप इंडस्ट्री करते हैं,
शुगर की इंडस्ट्री, और उससे सब मतलब जितने भी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया होगा वो सब एक एक करके वहां से जो वहां जो प्रोसेसिंग करनी होगी उनको कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप जिससे एक कम्युनिटी फायदा उठा सकेगी उसको हम कहते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पे पब्लिक पार्क्स हैं, कोई भी जा सकता है वहाँ, वहां से मतलब उसको यूज कर सकता है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। या पिकनिक स्पॉट्स है, ये भी। विलेज कॉमन्स में क्या आएगा, ग्रेजिंग ग्राउंड्स आते हैं। सपोज कोई विलेज है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है, सपोज सॉरी, हाँ, तो मैं बात कर रहा था जो यहाँ पे सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पे आई मीन जो विलेज कॉमन्स हैं इसमें क्या आते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स आते हैं। सपोज किसी विलेज ने ये डिसाइड किया कि हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी रखेंगे जो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हम वहां पे उनको ग्रेज करें। सो वो किस में आएगा, वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स में आएगा। और उसके बाद बुरील ग्राउंड्स, जो ग्रेव यार्ड्स होते हैं जहाँ पे दफनाया जाता है, तो वो भी वो किसी एक का नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, तो वो भी किस में आएगा, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में। विलेज पॉन्ड्स अब नहीं है, होते थे पुराने जमाने में, कहीं पे जो कॉमन लैंड होती थी वहां पे जाते थे, कोई कुआं बनाते थे वहां पे, तो वहां पे क्या होता था, फिर उसको सब यूज करते थे, कोई ये नहीं कहता था कि दिस इज माइन। तो वो भी आता था किसमें, वो भी आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में। नाउ नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज क्या है, resources owned by a specific or a particular country or a nation or national resources। ऐसा रिसोर्स जिसको ओन एक कंट्री या एक नेशन करता हो उसको हम कहेंगे वो है नेशनल रिसोर्स। सपोज हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, लाइक वी हैव रिवर्स, वी हैव लेक्स, ये किस में आते हैं, नेशनल रिसोर्सेज में। कभी आपने किसी बंदे को ये कहते हुए सुना है कि वो कहता है जो ये रिवर जहलम इट्स माइन, नो, बिकॉज ये जो रिवर जहलम है ये एक नेशन की प्रॉपर्टी है, एक कंट्री की प्रॉपर्टी है। सो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है। सो ये किस में आएगा, इट विल हम इसको किस में रखेंगे, हाँ, नेशनल रिसोर्सेज में। या कोई लैक है, इतने सारे हमारे पास रिवर्स है, लाइक वी हैव जहलम, वी हैव चिनाब, वी हैव गंगा, ब्रह्म, बहुत सारे अगर हम इंडिया की बात करें। एंड देन लैक्स, अगर हम जम्मू कश्मीर रीजन की ही बात करें तो कितने लैक्स हैं हमारे पास, वी हैव डल लैक, वुलर, मानसबल, आंचार, निगीन, बहुत सारे लैक्स हैं। तो किसी कोई बंदा ये नहीं कह सकता है कि ये लैक मेरा है। सो इनको एक कंट्री ऑन करती है, इनको एक कंट्री ओन, नेशन ओन करता है, और तभी हम उनको कहते हैं कि दीज आर नेशनल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट्स, सेम हियर, वाइल्ड लाइफ, सब किस में आते हैं, नेशनल रिसोर्सेज में। नाउ नेशन हैज अ लीगल राइट टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। सिंपल सी बात है, नेशन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, बिकॉज उसको लीगल राइट है। अगर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वी हैव रेलवेज, कैनॉल्स, ये कहाँ पे बने होते हैं, रेलवेज, रोड्स, कैनाल्स, जहां से होते हैं, मतलब वो तो सब गवर्नमेंट लैंड नहीं होगा, वो कहाँ से, वो किन की लैंड होगी, वो तो होगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। तो गवर्नमेंट ये हक रखती है, वो एक लीगल राइट रखती है कि वो उनसे ये लैंड एक्वायर करे, सो दैट कि पब्लिक गुड के लिए इसको यूजेबल बनाए। तो एग्जाम्पल आपके सामने रोड्स है, रेलवेज है, कैनाल्स है, ये ऑन, इनको, ये जो लैंड है, जो इनके अंडर लैंड आती है, मे बी उनको ओन कर रहा होगा कोई पर्टिकुलर पर्सन, बट जब नेशन को लगा कि इसको मैं पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल मतलब काबिल इस्तेमाल बना सकता हूं, तो उन्होंने इस लैंड को एक्वायर किया। सो ये भी, ये राइट, और ये सब चीजें अब किस में आएंगी, ये सब आएगी किस में, नेशनल रिसोर्सेज में। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, resources which belong to all the countries of the world or resources which are regulated by international institutions, इनको हम कहते हैं क्या, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, एग्जांपल से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, वाटर,
सीज, ओशंस। कोई ये नहीं कह सकता, कोई पर्टिकुलर कंट्री ये नहीं कह सकता कि पैसिफिक ओशन मेरा है, या जितने भी अटलांटिक, इंडियन ओशन, जितने भी ओशंस है, कोई ये नहीं कह सकता कि दिस ओशन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, बिकॉज ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जो इनको रेगुलेट करता है, और इनको कोई भी कंट्री इनको यूटिलाइज नहीं कर सकती विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि जब तक सब जब तक सब कोई डिसीजन ना ले कि हम इस रिसोर्स को यूज करें, उनको पहले परमिशन, बाकी जो इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट कर रहा होगा उससे परमिशन लेनी होगी, तब वो उस रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। So this was about classification and meaning of resources. जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे। इसमें रिसोर्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड एज ए रिसोर्स, सॉइल एज ए रिसोर्स। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि हमारी हमारे जो हम वीडियोस बनाएंगे वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे।